Assalamu alaikum everyone. I hope that you are doing well. आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे मैंने मुज़मा के लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन ये भी स्टिल देयर आर 4 लेक्चर्स बट दे आर 60 स्लाइड्स लॉन्ग, तो ऑब्वियसली फिर उतना ही हिसाब से टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई टू कवर दिस अप बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. So last time हमने बैक्टीरिया की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी. These slides may seem familiar to you because we studied them in detail. आज हम bacterial growth से, what is bacterial growth, we'll start from that. So let's get started. I hope that you can listen me well. आप लोगों को स्क्रीन नहीं शेयर हुई ना अभी? अच्छा, I have to share the screen. Okay. I hope आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा. Yes, ma'am. Okay. So what is bacterial growth? Bacterial growth, it is important to remember because इस तरह के questions में examiners आपको फंसा लेते हैं at times कि basically अगर आप सोचो तो आपको लगेगा bacterial growth is basically an increase in the size of the bacteria, but ऐसी बात नहीं है. Bacterial growth basically refers to an increase in the bacterial numbers. मतलब bacteria जब आपस में divide करते हैं और वो बहुत जो है rapidly जो है वो अपने numbers को increase करते हैं, so that is bacterial growth, and it does not refer to an increase in the size of the individual cells. ठीक है, so this is important and you should keep this in mind. How to determine the microbial numbers? It could be done directly through counting or indirectly through measuring their metabolic activity. ठीक है, आप उनको डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हो या इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि उनके वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो चीज़ कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो कोई और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली मेजर इनडायरेक्टली थ्रू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, बैक्टीरियल डिवीजन कैसे होती है कि मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो इतनी रैपिडली कैसे जो हैं वो आ जाते हैं. By means of, most commonly we have a method called binary fission, and I'm sure that you have read about it in your FSC or A levels के level पे आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा. It is the most common method of reproduction. It is an asexual reproduction, is splitting of the parent cells into 2 daughter cells. So basically जो ये आपको अब डायग्राम नज़र आ रही है, पिक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ बाइनरी फिशन, जिसके अंदर एक बैक्टीरियम का जो सेल होता है दैट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, उसको आप बाइनरी फिशन कहते हो. वी लुक एट द प्रोसेस इन डिटेल. बडिंग क्या चीज़ होती है? बड का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से एक बड जो है वो निकलती है और वो जो है वो एक अपना एक नया जो है बैक्टीरियम बना लेती है. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल डिवीजन. इट इज़ ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It forms from outgrowths, buds बनती हैं, of mature organisms. It is a form of mitotic division. When the bud reaches the size of the parent cell, it separates. ठीक है, तो basically you have the bacterium, it forms a bud that is basically an outgrowth from the mature bacterial cell. एक outgrowth बनती है by means of mitosis. उसका सारा जो material है वो divide होता है और जब वो large enough हो जाता है, mature enough हो जाता है, वो जो है वो स्प्लिट कर जाता है फ्रॉम द पेरेंट सेल और जो है वो मीनिंग इवेंचुअली यू हैव 2 बैक्टीरिया फ्रॉम द 1 बैक्टीरियम दैट वाज ओरिजिनली द पेरेंट बैक्टीरियम. अब बाइनरी फिशन में क्या होता है कि यू कैन सी ये आपका बैक्टीरियम है जिसकी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डीएनए है, इसका जो नेकेड लाई कर रहा है, सेल elongate and the DNA is replicated. ठीक है, जो सबसे पहले obviously whenever you need a cell to divide into 2 cells, so you need to replicate its DNA because हर सेल में एक DNA आएगा और दूसरे सेल में जो है वो दूसरा DNA जाएगा. So first of all you need to replicate the DNA. Cell wall and plasma membrane begin to divide. Obviously you need to divide the cell wall and the plasma membrane as well. Cross wall forms completely around the divided DNA. Then जो है ये आपके पास completely जो है it is separated and eventually the cell separates. ठीक है, so this is what happens. ये आपका DNA था और ये देख लो उससे जो है
न्यू जो बैक्टीरियम है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। ये आपका बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस है, दिस इज रिलेटिवली सिंपल एंड इजी एंड इट इज नॉट समथिंग रियली डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें सबसे पहले जो है डीएनए डिवाइड होगा, फिर आपका जो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में डिवाइड होंगे और फिर वो उसको जो है वो सेपरेट कर देंगे। जनरेशन टाइम, जिसको आप डबलिंग टाइम कहते हो, वो क्या चीज़ होती है? अच्छा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। Examiners love to keep on asking this question. What is generation time? That is the time required for a cell to divide and its population to double is called the generation time. ठीक है, मतलब एक सेल को जितना टाइम लगता है अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में, दैट इज बेसिकली द जनरेशन टाइम। फॉर एग्जांपल, एक ये बैक्टीरियम था, ये वाला, दैट इज वाज वन बैक्टीरियम, द टाइम इट टुक टू कवर ऑल दी स्टेप्स एंड डबल इट्स generation या double its population, because अब दो उसके पास daughter cell आ गए, that is the generation time. As you have seen in the picture, cell division produces two cells, two cell divisions produce four cells and so on. तो obviously अब ये जो दो cells हैं ये चार बनाएंगे, चार जो हैं वो आठ बनाएंगे, तो वो जो है क्या कहते हैं उसको, exponentially जो है उसके numbers जो हैं वो increase करते जाएंगे. So the nucleus divides the cell wall and membrane begins to form a transverse septum. Transverse septum becomes complete, daughter cells are separate. So basically this is the process of binary fission that is being shown in this diagram. And it is important to remember कि generation time का क्या मतलब है कि एक particular cell को या bacterium को अपनी population को double करने में जितना time लगता है, that is basically the generation time. Okay, bacterial generation doubling time, for example, E. coli का it's 20 minutes, meaning अगर जितना कम doubling time होगा obviously उतना आपका lethal या उतना क्या कह सकते हैं dangerous bacterium होगा, because obviously वो rapidly multiply कर सकता है, लेकिन जो है लेकिन there are certain bacteria that are very innately वो इतने ज़्यादा lethal होते हैं, for example tuberculosis, कि अगर उसका इतना लंबा भी जनरेशन टाइम है, so doesn't really make a difference because it will eventually cause havoc. ठीक है, इसीलिए लिहाजा बाइकोबैक्टीरियम जब आप फर्स्ट एक्सपोजर अगर आपका किसी इंसान का होता है बाय ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, तो व्हाट हैपेंस इज कि उसको फॉरेन डिजीज के सिम्टम्स नहीं आएंगे, बिकॉज उसको डिवाइड करने में टाइम लगेगा. ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का 14 days है. यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर ऑल these numbers because it doesn't make sense. Okay. Phases of bacterial growth क्या होते हैं? ठीक है, stages in bacterial growth curve. When a few bacteria are inoculated into a liquid growth medium, it is possible to plot a bacterial growth curve that shows the growth of the cells over time. ठीक है, अगर आप particular certain bacteria को लेते हो और उनको जो है वो एक culture medium में grow करवाते हो, तो you can actually monitor their growth and you can see the growth of the cells over time. So this is important. There are four basic phases of growth: the lag phase, the log phase, the stationary phase and death. ठीक है, ये जो है ये important है from an examination point of view. You should remember कि कौन कौन से phases जो हैं वो होते हैं bacterial cell growth के. Okay, well, first is the lag phase, the second is the log phase, the third is the stationary phase, and the fourth is the death phase. So this is the lag phase. Lag का क्या मतलब होता है? We'll discuss it in detail. Lag का क्या मतलब होता है? Lag का मतलब होता है कि something is lagging behind और something थोड़ी कोई slow हुई हुई है. तो जो initially उसको slowly वो growth को catch up करेगा और initially जो है वो थोड़ा सा सब्र कर रहा होगा, वो नहीं जो है वो ग्रो करेगा, तो दैट इज द लैग फेज. उसके बाद आता है लॉग फेज. लॉग फेज के अंदर जो है एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है? वही मैंने आपको बताया कि पहले वो डबल होगा, फिर वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, 16 एंड सो ऑन. तो द थिंग इज के एक्सपोनेंशियल फेज में वो एक्सपोनेंशियली जो है वो बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ होगी. उसके बाद एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा जिसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया जो है उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाएगी. ठीक है, वो ग्रो कर रहे होंगे लेकिन वो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो डेथ स्टार्ट हो जाएगी बैक्टीरिया की. और उसके बाद इफ देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया दैट कैन रिमेन वायबल, दे विल रिमेन वायबल, अदरवाइज दे वुड नॉट. ठीक है, अब लैग फेज क्या होता है कि दैट इज द पीरियड ऑफ लिटिल और नो सेल डिवीजन, कैन लास्ट फॉर 1 hour और सेवरल डेज.
cells are not dormant, ठीक है, cells जो होते हैं इसमें dormant नहीं होते, they are active, वो actively जो है वो division की phase में होते हैं, but the thing is कि वो जो है वो थोड़ा lag behind कर रहे होते हैं, just they are just waiting for मतलब they are preparing themselves to actually divide, you can put it like this. So it is basically it lasts for an hour, or it can last for days as well, undergoing a period of intense metabolic activity, DNA enzyme synthesis. So basically as I said कि cells are preparing themselves, so इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है अपने आप को prepare कर रहे हैं कि जो क्या कहते हैं सेल्स जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम जो है वो डिवीजन अपनी स्टार्ट करें, और उसके अंदर जो है वो डीएनए और एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो उनके अंदर पाई जाती है. Then comes a log phase, जिसके अंदर that is the period of growth also known as the log increase, ठीक है, sometimes called the exponential growth phase. Cellular respiration is most active during this period. Metabolic activity is active and is most preferable for industrial purposes, sensitive to adverse conditions. ठीक है, so सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है वो लॉग फेज के अंदर होती है, क्योंकि लॉग फेज के अंदर जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज करता है. और जब अगर आपने कल्चर करना है किसी बैक्टीरिया को फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, तो ये जो फेज है आपके लिए आइडियल फेज है, बिकॉज इस फेज के अंदर वो रैपिडली जो है वो डिवाइड करेगा और आपको बहुत ज़्यादा जो नंबर्स हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मिल जाएंगे. Then comes the stationary phase. इसमें क्या होता है कि इसमें ये stationary phase क्या है कि this is actually the phase of equilibrium. Equilibrium का क्या मतलब है कि मतलब इस phase में आके कुछ जो हैं बैक्टीरिया जो हैं वो they start to die even, ठीक है, और उसके बाद लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो नए बन भी रहे होते हैं. तो बेसिकली इस फेज में आके व्हाट हैपेंस इज कि द रेट ऑफ न्यू बैक्टीरिया दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर बीइंग डाइड, ठीक है. तो ये एक होता है. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 बैक्टीरिया जो हैं दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड और 10 ही जो हैं दे आर डेड, तो obviously the numbers would remain stationary or stagnant, ठीक है. Metabolic activity of surviving cells slows down, which stabilizes the population. Cause of discontinuity of exponential growth is not clear. Possible reasons for entry into the stationary phase. Nutrition limitation हो सकती है, obviously whenever you are growing them onto a culture, तो आप जो हो अगर आप if you keep on adding the nutrients, so it might prolong its log phase. लेकिन अगर obviously in natural environment आपको जो nutrition है, ये nutrients जो हैं उनकी limitation होती है. There are limited amounts of nutrients that are available, so that is one reason. Limited oxygen availability, toxic waste accumulation, critical population density is reached, ठीक है. इसके अंदर हाँ ये भी एक चीज़ होती है कि जब आपके बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे होते हैं एक्टिवली, तो वो ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्चुअली उसकी जो ग्रोथ है उसको फिर वो कम करते हैं. उसको आप कह सकते हो कि टॉक्सिक वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं. Then comes a death phase. It is referred to as the also known as the log decline phase. It continues until a small fraction of population is diminished. Some population dies out completely, others retain surviving cells indefinitely, while others only retain for a few days. So there will be certain bacteria who will die permanently and on the spot, and there will be some others who will die after a few days, and there will be some others who will they will survive for an indefinite period of time. So basically this was your lag phase जिसके अंदर वो wait कर रहा है. This was your log phase जिसके अंदर exponential growth हो गई है. This is the stationary phase जिसके अंदर जो है उसकी activity जो है या उसकी जो growth है वो slow down हो चुकी है. And this is followed by the death phase जो eventually जो है death उसकी start हो चुकी है. Obligate intracellular growth. Most bacterial pathogens of humans are capable of growing on artificial media in clinical laboratory. Certain bacterial pathogens of humans can only grow within the living cells. They are called the obligate intracellular parasites. ठीक है.
सो ये जो टर्म्स हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मतलब जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर जो पैरासाइट्स या ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं। जो बैक्टीरिया मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं दे कैन लिव एंड दे कैन सर्वाइव एंड कॉज डैमेज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी but मतलब के they don't really need to enter the cell but they can just enter the human body and cause damage। मतलब देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाना इज वन थिंग एंड सेल्स के अंदर एंटर होना इज एन अदर थिंग। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई एयर बोर्न इन्फेक्शन है और हम हमारे जो नेजल पैसेजेस के थ्रू जो है वो हमारे फॉर एग्जांपल लंग्स में आ रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी के वो जो है हमारे सेल्स के लंग्स के सेल्स के अंदर एंटर हो टू कॉज डैमेज। इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज बाय स्टेइंग इन द एल्वियोलाई और गोइंग इनटू द अदर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और व्हाटएवर। ठीक है, तो सेल्स के अंदर उसका रहना जरूरी नहीं होता फॉर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बट देर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद इन द सेल्स विद इन द ह्यूमन सेल्स। उनको आप ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहोगे और इसकी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे आई रिकमेंड यू टू learn these examples because the examiner can actually ask you this question okay, what is the obligate intracellular growth, and once you just answer them correctly they might go on further to ask you what give me some examples। ठीक है, so that is one thing। Why obligate parasites grow within the living cells only? The main reason for this is that they lack the ability to produce sufficient ATP and must use the ATP produced by the host। Obviously, देखो as humans we need a constant source of ATP। ठीक है, बात ये है कि whenever a person dies is because something happens that does not provide him or her sufficient amounts of ATP। So इसी तरह बैक्टीरिया में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए as long as the energy is being produced, as long as the energy is being delivered to the cells, they will survive, but once it declines so problems arise। so लिहाजा क्या होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है कि अगर बैक्टीरिया को जो है एटीपी नहीं मिलेगा वो सरवाइव नहीं कर सकेगा तो व्हाट हैपेंस इज कि दे रिलाई ऑन द होस्ट एटीपी टू सरवाइव और उन वो जो है वो सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ एटीपी नहीं प्रोड्यूस कर पाते। दैट्स व्हाई दे नीड द होस्ट एटीपी। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ रिस्पांस टू ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के रिस्पांस में बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं। There are obligate aerobes, they are facultative anaerobes, and they are obligate anaerobes। Let's see what this means। ठीक है, एरोब का क्या मतलब होता है, समथिंग दैट नीड्स ऑक्सीजन। एनाएरोब का क्या मतलब होता है, समथिंग दैट डज नॉट नीड ऑक्सीजन। ठीक है, they require oxygen to grow because their ATP generating system is dependent on oxygen as the hydrogen acceptor। If you remember the electron transport chain, उसके अंदर जो है eventually you need oxygen to accept the protons that are produced by the electron transport chain। और उसके अंदर जो है अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कोई आपका एक्सेप्टर नहीं होगा और इवेंचुअली आपके पास एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगा। एग्जांपल आपके पास जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की एग्जांपल है। दिस इज एन ऑब्लिगेट एरोब। इसके अंदर दे नीड ऑक्सीजन एंड दे वोंट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, then you have facultative anaerobes। They utilize oxygen if present to generate energy by respiration but can also use fermentation pathway to synthesize ATP in the absence of sufficient oxygen। So basically this is the bacteria who will actually अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो well and good, I can use that, but if it is not available then it doesn't matter because I can actually use fermentation to produce ATP। मीनिंग कि इट इज नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। जो ऑब्लिगेट क्या मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर के एरोब के मतलब एरोबिक कंडीशंस होनी चाहिए। मीनिंग के देयर शुड ऑलवेज बी ऑक्सीजन प्रेजेंट। इफ द ऑक्सीजन इज एब्सेंट द बैक्टीरियम वोंट सर्वाइव। बट इन केस ऑफ फैकल्टेटिव एनाएरोब what happens is कि oxygen है तो well and good, I can survive with that, but if oxygen is not present then I can also survive because I have alternative ways of making ATP। example क्या आती है आपके पास, E. coli की example आती है।
Then you have obligate anaerobes. These bacteria cannot grow in the presence of oxygen because they lack either the superoxide dismutase or catalase or both. ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह ही नहीं सकते. अगर ऑक्सीजन आप इनको प्रोवाइड करोगे तो दे विल डाई. तो लिहाजा जो है इन बैक्टीरिया के लिए यू डोंट नीड ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन होगी तो दे कैन डाई. ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालेज. कैटालेज आप लोगों को याद होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वो H2O एंड ऑक्सीजन के अंदर जो कन्वर्ट करता है. सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज भी कोई फ्री ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से रिलेटेड एक एंजाइम था जो कि चाहिए होता है आपको. अगर ये दोनों एंजाइम्स लैक करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसके लिए एज अ डेंजरस प्रोडक्ट होगी और उसको जो है वो किल करेगी, बिकॉज जो है फ्री ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स जो है वो बन जाएंगे. और इसके अंदर जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है एक एग्जांपल है जो आपका टेटनस कॉज करता है whenever you fall down on a dirty ground and you do not take the tetanus shot, जो कि बहुत कॉमन है इन पाकिस्तान. एंड tetanus के जो eventually जो patients that come with tetanus they have a very I think a poor prognosis because it's a very sad and a very distressing disease to watch. So fermentation of sugars. The fermentation of certain sugar is the basis of the laboratory identification of some important pathogens. Fermentation of sugars such as glucose results in the production of ATP and pyruvic acid or lactic acid. These acids can lower the pH and this can be detected by changes in color of the indicator dyes. अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, आप लोगों ने याद पढ़े होगा कि अगर आप एसिडिक और बेसिक डाइज ऐड करते हो, अगर जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है तो डाई का कलर स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कलर में चेंज हो जाता था, और अगर जो बेसिक हो जाती है तो फिर भी वो चेंज होएगा. तो अगर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंट कर रहा है शुगर्स को फॉर एग्जांपल, और वो उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन इज कि एसिडिक पीएच की वजह से जो पीएच है वो बिलो 7 चली जाएगी और जो इंडिकेटर डाई है वो चेंज हो जाएगा. और ये जो है यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट सर्टेन pathogens on the basis of fermentation of sugars. Principle of classification. Okay, the initial criterion used in the classification is the nature of the cell wall. It is rigid, flexible, or absent. Bacteria with rigid, thick cell walls can be subdivided into free-living bacteria, which are capable of growing on laboratory medium in the absence of human or other animal cells, and non-free-living bacteria, which are obligate intracellular parasites and therefore can only grow within the human or other animal cells. So this is basically the same thing कि पहले हमने उनको डिवाइड किया कि उनकी जो सेल वॉल थी उसकी थिकनेस वगैरह पे, जो हमने पिछली दफा ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़े थे. और उसके बाद जो है देयर आर सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि फ्रीली लिव करते हैं विद इन द क्या कह सकते हैं विद इन द सेल, विद इन जो कि बाहर भी लिव कर सकते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन में भी लिव कर सकते हैं, ह्यूमन के अंदर भी लिव कर सकते हैं, और उसके अलावा नॉन फ्री लिविंग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विद इन द ह्यूमन सेल जो है वो survive करते हैं. The free living organisms are further subdivided according to their shape and staining reaction into a variety of gram positive and gram negative foci and rods with different oxygen requirements and spore forming abilities. Bacteria with flexible thin walls, the spirochetes, and those without cell walls, the mycoplasma, form a separate unit. So basically जो spirochetes होते हैं मोस्टली हमने जो पिछली दफा पढ़ा था कि कोसाई जो होते हैं वो होते हैं राउंड या ओवल शेप्ड, और रॉड्स जो होते हैं बेसिलाई दे आर मतलब रॉड शेप्ड, और जो स्पाइरोचीट्स होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं. और अगर अगर एक बैक्टीरियम की सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो दैट विल बी बेसिकली माइकोप्लाज्मा जो होता है दैट इज द बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल नहीं होती, लिहाजा इसकी स्टेनिंग भी नहीं होती है. बिकॉज सेल वॉल नहीं होगी तो ऑब्वियसली ना ये पॉजिटिवली स्टेन करेगा ना ये मतलब नेगेटिवली स्टेन करेगा. So this is basically a classification. I know it's very difficult to learn this table, but you can just go through it.
if this makes any sense to you कि ऊपर से कि सेल वॉल के बेसिस पे पहले हुई है, उसके बाद फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोसाई rods etc. So this ends our lecture. So I'll just continue with the lecture I started on one day, जिसके अंदर से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और कुछ रह गई थी, ट्रांसडक्शन वगैरह का लेक्चर जो था. लेट मी सी वेयर इट इज़. कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी. नो मैम. ओके थैंक यू. हाँ यही वाला है क्वेश्चन. ओके मैं इन स्लाइड्स को थोड़ा रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा याद आ जाए कि क्या चीज़ थी, क्या लेक्चर था. बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत. The genetic material of a typical bacterium consists of a single circular molecule. ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं. Bacteria are haploid and in any haploid cell, any gene that has mutated is therefore not expressed. ये मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिप्लॉयड होता है. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर हैप्लॉयड होता है, मतलब हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होती है. क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली बनते नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर जीन की एक ही कॉपी होती है. लेकिन हमारे अंदर 1 कॉपी इज फ्रॉम द मदर, 1 कॉपी इज फ्रॉम द फादर. तो लिहाजा अगर एक कॉपी के अंदर म्यूटेशन होगी तो व्हाट विल हैपन इज कि शायद दूसरी कॉपी जो है वो नॉर्मल हो और वो नॉर्मली एक्सप्रेस करती रहे. तो लिहाजा जो है वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो शायद लॉस ना हो. म्यूटेशंस ये हमने डिटेल में पढ़ा था. सो आई विल जस्ट गो quickly through the slides कि mutations क्या होती हैं. The change in the base sequence of the DNA that usually results in insertion of different amino acid into a protein and appearance of altered phenotype. Causes of mutation base substitution हो सकती है, frame shift हो सकती है, transposons हो सकती हैं. Base substitution में कि एक particular जो nitrogenous base है वो replace हो जाए. तो you can actually go through the recording of this lecture and you will know कि ये मैंने बहुत detail में आप लोगों को पढ़ाया था at one point when we started microbiology and it was an incorrectly placed lecture. मिससेंस म्यूटेशन मैंने आपको ये भी बताया था कि मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर बेस सब्स्टिट्यूशन होती है, जिससे जो आपका अमीनो एसिड था, फॉर एग्जांपल अगर उसने मेथियोनिन को कोड करना था तो वो उससे कोड करे फॉर एग्जांपल टायरोसिन, तो दैट इज मिससेंस म्यूटेशन. नॉनसेंस क्या होती है कि अगर जो है अगर आपकी कोई ऐसी म्यूटेशन जो कि एक स्टॉप कोडॉन बना दे, जो मैंने आपको बताया था UAA, UAG एंड UGA, दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स जो कि होते हैं. तो अगर कोई ऐसी म्यूटेशन जो कि एक नॉर्मल कोडॉन को स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट कर दे तो दैट इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है कि पूरा का पूरा जो है या 3 से ज्यादा, मतलब इट शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 जो है विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल अगर आप एक नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए के अंदर डाल देते हो तो वो पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीक्वेंस थी AUG AUC एंड देन यू हैव AUC अगेन. तो अगर इस AUC के दरमियान जो है अगर इफ यू एड अनदर A तो वो क्या बन जाएगा AUG फिर AAU. तो मीनिंग कि जो कोडॉन है जो आपका 3 न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस से एक कोडॉन बनता है दैट कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड, वो पूरा का पूरा ऑल्टर हो जाएगा और आपका जो पूरा प्रोटीन होगा वो एबनॉर्मल होगा जो प्रोड्यूस होगा. Okay, so transposons क्या होते हैं? These are the segments of DNA that can move around to different positions in the genome of a single cell. In the process, they may cause mutation.
increase or decrease the amount of DNA in the genome of the cell, and if the cell is a precursor of a gamete in the genomes of any descendants. These mobile segments of DNA are sometimes called the jumping genes. So basically, transposons जो होते हैं, this slide I think was not included in the previous ones which I had. Basically these are the segments of DNA जो कि throughout the genome जो हैं वो move करती रहती हैं और इस प्रोसेस की कॉज में दे कैन एक्चुअली कॉज म्यूटेशन, सो लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, जंपिंग जीन्स कहेंगे, ठीक है. दीज आर कॉल्ड द जंपिंग जीन्स. सो ये हमने देख लिया था कि क्या क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट क्या होती है, नॉनसेंस, साइलेंट एक्सेट्रा. Causes of mutations, chemicals, radiations, viruses. अब ये वाला चीज, if you remember, transfer of DNA between bacterial cells, हमने conjugation पढ़ा था, transduction पढ़ा था, और ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने आई थिंक नहीं पढ़ा था. तो लेट्स गो थ्रू दिस. इसके अंदर इफ यू रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था कि जो पिलस होता है, जो पिलाई हमने पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में, what happens is कि a suitable donor cell called the male comes near the recipient cell called the female. It establishes the cell to cell contact and transfers the genetic material. प्लाज्मिड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. प्लाज्मिड्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड बाय कॉन्जुगेशन. प्लाज्मिड्स कैन आल्सो मोबिलाइज पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम फॉर ट्रांसफर. Sex pilus is responsible for the attachment of the donor and recipient cell. Sex pilus is responsible for the attachment of the donor in bacterial conjugation, that is the mating negative cell, ठीक है. So basically this was a positive cell, इसे extend कर रहा है pillar cell, ठीक है. This is donor bacterial cell is bacteriophage होता है, that is the type of virus that infects the bacterial cell. उसके अंदर क्या होगा कि जो bacterial DNA होगा वो ट्रांसफर होगा by means of bacteria. इसके अंदर हम ये चीज okay, there are two methods. First, in nature, dying bacteria may release their DNA, which may be taken up by a recipient cell. I think I did not teach you this, so let's go through this. ठीक है. Transformation में, transformation का literal मतलब क्या है कि it is basically the transfer of DNA from one cell to another cell. ठीक है. खुद ही, because देखो में क्या हुआ, वो mating process था, ठीक है, पॉजिटिव F नेगेटिव सेल्स के दरमियान में. उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रांसडक्शन, जिसके अंदर आपकी जो है वो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है. देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफर होता है. फर्स्ट क्या हो सकता है कि अगर एक बैक्टीरिया जो है उसकी डेथ होती है और वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिलीज करता है, तो एक पर्टिकुलर जो लिविंग बैक्टीरिया होगा एनवायरनमेंट के अंदर वो उसको अपटेक कर लेता है. Certain bacteria such as Neisseria, Haemophilus synthesize receptors on the cell surface that play a role in the uptake of DNA from the environment. ठीक है. तो देखो इसमें for example there are certain bacteria, उसमें एग्जाम्पल आती है निजेरिया की और हेमोफिलस की, जिनके पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं. तो दे आर बेसिकली कॉन्टिन्यूसली हंटिंग फॉर सर्टन बैक्टीरियल डीएनए जो कि आपको एनवायरनमेंट में लाइक किया हुआ मिले और वो उसको अपटेक कर ले. सेकेंड क्या होता है कि इन द लेबोरेटरी एन इन्वेस्टिगेटर में एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इंट्रोड्यूस इट इनटू अ जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया. When purified DNA is injected into the nucleus of a eukaryotic cell, the process is called transfection. ठीक है. So basically transformation के अंदर there are two processes. Naturally क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अगर डाई करता है तो it releases its DNA into the environment and it is
particular free lying DNA is taken up by another bacterium, ठीक है, तो लिहाजा जो है that is results in the transfer of the genetic information or genetic material. बट सेकेंड आपके पास क्या चीज़ होती है कि अगर आप लेबॉर्ट्री के अंदर चले जाओ और अगर आप एक पर्टिकुलर बैक्टीरियम से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइसोलेट करो और उसको आपका जो है वो इंट्रोड्यूस कर दो इनटू अनदर बैक्टीरियम, तो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर आप इंजेक्ट करोगे दैट DNA into the human cell or into a eukaryotic cell, so this process instead of being transformation is called transfection, ठीक है. So these are certain what I can say terms that you should actually know, because the examiner might ask you कि transfection और transformation में क्या difference होता है. So ये basically जो है वो living encapsulated bacteria is injected into this mouse. Mouse dies. Colonies of encapsulated bacteria were isolated from the dead mouse. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है? Living non-encapsulated bacteria injected into the mouse. Mouse remains healthy. A few colonies of non-encapsulated bacteria were isolated from the mouse. Phagocytes destroyed non-encapsulated bacteria. So इसके अंदर जो है बेसिकली इट इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से इसके जो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज़्यादा रिलेटिवली लीथल होता है एंड इट कैन कॉज द माउस टू डाई. और आप जो है इसके ट्रांसफेक्शन के थ्रू यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपने जो है वो इंसर्ट किया और आपने जो है फिर इवेंचुअली जो डेड माउस था आपने उससे जो है बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं वो आइसोलेट कर ली. ठीक है. सो उसके बाद द heat killed encapsulated bacteria is injected into the mouse. Obviously अगर आपने उसको heat से kill कर दिया encapsulated bacteria को तो it won't affect the mouse और mouse जो है वो uninfected रहेगा और healthy रहेगा और कोई colonies आप obtain नहीं कर सकोगे because वो killed होता है. Living non-encapsulated and heat-killed encapsulated bacteria are injected into the mouse. Mouse dies. Colonies of encapsulated bacteria were isolated from the dead mouse. ठीक है. Recombination क्या होती है? The process by which the genetic material is broken down and joined to other genetic material. ठीक है. उसमें क्या हो रहा है कि आपने genetic material का एक portion जो है उसको आपने break down किया और आपने join कर दिया to another portion of the genetic material. The exchange of genes between the two DNA molecules to form the combination of genes on a chromosome. ठीक है. न्यू कॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन देखो टर्म ही आपको पता चल रही है कि क्या चीज हो रही है कि एक नई कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट हो रही है. सो दिस इज बेसिकली रिकॉम्बिनेशन. तो उसके बाद आगे आता है आपके पास लाइक म्यूटेटिक recombination contributes to the population's genetic diversity, which is the source for variation in evolution. So basically, mutations की transition genetic recombinations हैं that is responsible for the process of evolution because it is responsible for the transfer of genes that provide certain quality to a particular organism to another organism who does not possess that quality. ठीक है. Types of recombination, homologous recombination, and then you have the non-homologous recombination. Okay, so I can see what Ma'am Uzma did was deleted all the slides regarding recombination, and I think it's a good thing because I don't think there is a need for you to go through all the processes of recombination. So that is a good news for all of you. So let me see. ये फिर मैं next lecture में cover कर लूँगी. Do you want me to cover these few slides in this lecture in 15 minutes? क्योंकि फिर अब उसके बाद फिर 2 lectures ही रह जाएंगे तो I'll cover that after next week. It's up to you. मैम अब total कितने lectures हैं? इसके बाद 2 है और मतलब 2 ऐसे हैं कि 4 लेक्चर्स है वो बेसिकली 2 कंबाइंड है विद अ लॉट ऑफ स्लाइड्स ऑब्वियसली. Okay, we can cover this up in we have 15 minutes. Okay. So क्या चीज होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ पैथोजन if it is capable of causing disease. ठीक है. पैथोजन अच्छा
देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, स्पेशली हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दीज आर द organisms जो कि you cannot see with the naked eye, you always need a microscope to see those bacteria, those organisms, ठीक है। तो दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेशक वो बैक्टीरिया है या वो वायरस है या वो फंगाई है या वो पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट्स जो होते हैं, अगर कोई भी है उनमें से और वो दैट हैज द एबिलिटी of causing a disease, so that is referred to a pathogen, ठीक है। So this is basically the definition of pathogen. Any microorganism that is capable of causing disease. However, organisms are highly pathogenic, that is that they often cause disease, whereas others cause disease rarely, ठीक है। तो इसमें आपकी pathogenicity जो होती है वो variable होती है। There are certain microorganisms that can cause a disease every time they cause an infection, तो दैट इज उसकी हाई पैथोजेनिसिटी होगी, और अगर जो है वो इतनी डिजीज कॉज ना करे तो दैट इज लो पैथोजेनिसिटी। opportunistic pathogens क्या हैं? Opportunistic pathogens are those that rarely if ever cause disease in immunocompetent people but can cause serious infections in immunocompromised people, ठीक है। इसको आप कहते हो कि opportunistic infection हो गई है एक बंदे को। अगर एक बंदा हेल्दी है, उसका इम्यून सिस्टम हेल्दी है, उसको आप कहते हो, ठीक है, कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्पिटेंट इम्यून सिस्टम है, और एज सून एज जो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की इम्यून डेफिशिएंसी हुई, फॉर एग्जांपल उसको एड्स हो गया या उसका ट्रांसप्लांट हो गया, तो व्हाट हैपेंस वाज के उसकी जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो उसको नॉर्मली कुछ भी नहीं कहता था, वो अब उसके बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करना शुरू हो गया है। उसको आप कहते हो opportunistic pathogens या opportunistic infections. The opportunists are frequently members of the body's normal flora, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे स्किन के ऊपर बहुत से बैक्टीरिया हैं, हमारे गट के अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, तो उसको आप नॉर्मल फ्लोरा कहते हो, जो कि कोएग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे साथ और हमें कुछ नहीं कहते। बट एज सून एज हमारी इम्यूनिटी जो है वो डिक्लाइन करती है, तो वो जो है वो डिजीज कॉज करना शुरू हो जाते हैं। Virulence is the quantitative measure of pathogenicity and is measured by the number of organisms required to cause the disease, ठीक है। So basically virulence क्या होती है कि the number of organisms that is required to cause a disease. For example, if you need 1 million bacteria to cause a particular disease, on the other hand you need, for example, क्या कह सकते हैं, 5 लाख बैक्टीरिया टू कॉज अ डिजीज। तो वायरुलेंस जो है वो किसकी ज्यादा होगी? जिस बैक्टीरिया आपको 5 लाख जो बैक्टीरिया चाहिए होंगे, मीनिंग कि कम नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं दैट आर कॉजिंग द सेम डिजीज, जो कि एक ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर रहे हैं। सो दैट the smaller the number of bacteria that cause disease, the higher will be the virulence of that particular microorganism or bacteria या जो। The LD50 क्या चीज होती है? 50% lethal dose is the number of organisms needed to kill half the host, ठीक है। ये जो है आप बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर जो है ये डिटरमिन करते हो। ID50 और LD50 ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। LD50 क्या होती है? दैट इज द 50% lethal dose, कि कितने बैक्टीरिया जो हैं दे आर नीडेड टू किल 50% ऑफ द सेल्स इन द होस्ट सेल्स, या आपने अगर कल्चर मीडियम में इफ यू कीप 10 सेल्स, ठीक है, अगर आपने 10 होस्ट सेल्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ह्यूमन सेल्स आपने निकाल के रखती हैं, और कितने बैक्टीरिया चाहिए थे टू किल 5 of those cells, ठीक है, meaning 50% of those cells is the lethal dose, LD50। और ID50 क्या होती है? 50% infectious dose is the number needed to cause infection in half of the host, ठीक है। जो मीनिंग के अगर एक आपके पास इफ यू हैव 100 होस्ट सेल्स और उसमें जो ID50 है वो शो करेगा कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो थे वो चाहिए थे टू actually cause infection in half of the host cells, ठीक है। Organisms with a lower LD50 are said to be more virulent than those with a higher LD50. Lower क्या मतलब कि जो है number of organism required थे to kill 50% of the host cells, अगर वो कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक हैवक क्रिएट कर रहे हैं और ज्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं कर रहे, बिकॉज फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स आर नीडेड टू कॉज डेथ और डिजीज।
The infectious dose of an organism required to cause a disease varies greatly among the pathogenic bacteria. For example, Shigella and Salmonella both cause diarrhea by infecting the gastrointestinal tract, but the infectious dose of Shigella is less than 100 organisms, whereas infectious dose of Salmonella is in the order of 100,000. Meaning कि obviously ये bacteria to bacteria vary करता है कि फॉर एग्जाम्पल दोनों जो है शिगेला और सैल्मोनेला सेम तरह का डायरिया कॉज करते हैं, ठीक है, लेकिन शिगेला जो है उस लेस देन 100 ऑर्गेनिजम्स चाहिए शिगेला के टू कॉज डिजीज, लेकिन जो सैल्मोनेला है उसके अंदर क्या हो सकता है कि उसकी जो है वो तकरीबन 1 लाख आपको ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं टू कॉज द सेम डिजीज, ठीक है. On what factors does the infectious dose of bacteria depends? The infectious dose of bacteria depends primarily on their virulence factors, whether their pili allow them to adhere well to the mucous membrane. अब कितना एक बैक्टीरियम जो है वो कितना infectious है, वो जो है वो हमें कैसे पता चलता है कि जो क्या कहते हैं एक बैक्टीरियम जो है वो कितना इन्फेक्शियस है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर उसके पास ऐसे पिलाई अवेलेबल हैं जो उसको होस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं. वेदर दे प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है. एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स, दे आर सर्टेन टॉक्सिन्स दैट अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस दैट कॉज डिजीज, जो कि ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं. Whether they possess a capsule to protect them from phagocytosis. मैंने आपको अभी जो हमने माउस की एग्जांपल पढ़ी थी, जब आपने उनको कैप्सूल के बगैर वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया था तो माउस जो था उसको कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज जो कैप्सूल अनकैप्सुलेटेड जो होते हैं बैक्टीरिया वो आप इजीली उनको किल कर सकते हो बाय फेगोसाइटोसिस. आपका इम्यून रिस्पॉन्स उनको इजीली किल कर सकता है. Whether they survive various non-specific host defenses such as acid in the stomach, ठीक है. Why do people get infectious diseases? People get infectious diseases when microorganisms overpower our host defenses. Example, when the balance between the organism and the host shifts in the favor of the organism. The organism or its products are then present in sufficient amounts to induce various symptoms such as fever and inflammation, which we interpret as those as infectious of an infectious disease. So basically क्या होगा कि अगर जो होस्ट के अब हमारे अंदर भी देर आर सो मेनी डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्सेज, और अगर जो होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू फाइट द बैक्टीरिया, सो देन वी हैव द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है. और उसके अंदर साइंस क्या होंगे आपके, साइंस होंगे फीवर वगैरह जो है आपको पता चलेगा. Critical determinants in overpowering the host. From the organism's perspective, the two critical determinants in overpowering the host are the number of organisms to which the host or person is exposed, ठीक है. अब इसके अंदर आप लोगों ने कोविड के अंदर you might have heard something called the viral load, कि एक बंदे के अंदर जितना वायरल लोड होगा उतना उसके अंदर डिजीज सेवेरिटी होगी. तो उसमें दैट इज वन थिंग कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम बीइंग एक्सपोज्ड टू 100 वायरसेस एवरी डे, सो मैं एक हफ्ते तक एक्सपोज रहती हूँ, तो मैं 700 वायरसेस जो है वो मुझे एक्सपोज हो गए हैं. और अगर बरक्स इसके कि मैं सिर्फ एक दिन बाहर जाती हूँ और मैं 100 वायरसेस जो हैं वो मुझे हिट करते हैं, ऑब्वियसली जिस पेशेंट के अंदर, जिस बंदे के अंदर 700 वायरसेस होंगे, दैट विल बी मोर lethal as compared to someone who was exposed with 100 viruses, ठीक है. और and secondly the virulence of these organisms. Mechanisms of causing the disease. Bacteria can cause disease by two mechanisms. Toxin production, मैंने endotoxins और exotoxins की बात की, and second is invasion and inflammation. Mechanism of toxin production. Toxins fall into two general categories, exotoxins and endotoxins, ठीक है. एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स. एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एक्सक्रीटेड बाय द लिविंग सेल्स, मीनिंग कि वो लिविंग सेल्स जो हैं वो उसको एक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. दीज आर रिलेटिवली अनस्टेबल. अब इसके बरक्स जो एंडोटॉक्सिन क्या है? दे आर रिलीज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है. जो बैक्टीरिया की जब डेथ होगी उसके बाद जो टॉक्सिन रिलीज होगा दैट इज the endotoxin. They are relatively stable. It is highly antigenic. Antigenic का क्या मतलब है कि वो बेसिकली एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए वो कितनी रैपिडली वो एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है, एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइटर ऑफ एंटीटॉक्सिन्स. और इसके रिस्पॉन्स में देयर विल बी हाई नंबर्स ऑफ एंटीटॉक्सिन्स जो कि प्रोड्यूस करेगा आपका होस्ट सेल्स.
दे डू नॉट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन। जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो एंटीटॉक्सिन की स्टिमुलेशन नहीं करते। कन्वर्टेड इनटू एंटीजेनिक नॉन टॉक्सिक toxoids, not converted into toxoids, highly toxic, weakly toxic, do not produce fever in host, often produce fever in host. So these are certain examples of the endotoxin और exotoxin के दरमियान जो difference है उसका table है. So you just go through this briefly. लेकिन मतलब it is important relatively. It is a table from Robbins. So just try to go through this. ठीक है? Okay. I think I'll just stop here because this will be really long. So let's continue with this and the next lecture in the next lecture, inshallah. Okay. Okay. Thank you so much. If anyone has any questions, you can ask me, or otherwise you're free to leave. No questions? Okay. You can go, people. Have a good day. मैम थैंक यू मैम। हाँ जी मैम वाइवा का कंफर्म कर दें फिर। बच्चे, मेरा वो ना लेक्चर्स ख़त्म होंगे। अब देखो ना, अब आज मैंने कोशिश की थी कि मैं दोनों लेक्चर्स ख़त्म करूँगी, बट नहीं हो पाए। इसके बाद 2 लेक्चर्स हैं मेरे पास, लेकिन ऑब्वियसली दे आर लेंथी लेक्चर्स। तो यू माइट एक्सपेक्ट योर वाइवा टू बिगिन फ्रॉम प्रॉबेबली 18th, ठीक है, और मैक्सिमम बाय 21st, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। और मैम ये जो लेक्चर्स आप पढ़ा रही हैं इन सब के पीपीटी हमें स्लाइड्स शेयर कर दें, हमसे ईमेल कर दें हमें। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई विल सेंड इट इंशाल्लाह। अभी आजकल मैं वाइवल्स ले रही हूँ एससीपी के, तो आई एम अ बिट बिजी, लेकिन आई विल बी डन टुडे, तो इंशाल्लाह मैं कल तक आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।